Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Today's topic is internet and emails. Learning aims इंटरनेट एंड इट्स यूजेस. ईमेल, जीमेल, इंटरनेट अ कम्युनिकेशन टूल. तो इस चैप्टर में हम इंटरनेट और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे. ईमेल कैसे बनाया जाता है और इंटरनेट एक कम्युनिकेशन टूल कैसे है, ये भी हम जानेंगे. Students, you are familiar with the term internet, also called the network of networks. The internet connects millions of computers and devices across the globe, forming a vast web that reaches into nearly every corner of our world. It links people, places and information in a way that was once unimaginable, enabling us to communicate instantly, sharing knowledge and access countless resources with just a few click. तो आप जान ही चुके हो कि इंटरनेट क्या है. ये आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को और डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे या किसी कोने में किसी भी कंप्यूटर से या नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकें ताकि आप इंफॉर्मेशन एंड डेटाज वगैरह शेयर कर सकें. The internet has grown to become a vital part of our everyday lives, whether we are using it to help us with school assignments, connect with friends and family, or relax with our favorite movies and games. It makes our task quicker, easier, and more efficient. It serves as a powerful tool for learning, providing access to a vast library of information on nearly any topic imaginable. It also keeps us up to date with the latest news, events and trends around the world, right from the comfort of our home. तो ये इतना वास्ट हो चुका है, इतना फैल चुका है कि हम घर में बैठे किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं. किसी भी टॉपिक पे ऊपर या किसी भी बुक के ऊपर या किसी भी न्यूज़ के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी हो तो आप घर बैठे ले सकते हैं. अगर आपको असाइनमेंट बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो वो भी आप इंटरनेट की हेल्प से बना सकते हो. यूजेस ऑफ इंटरनेट. पहला है कम्युनिकेशन. द इंटरनेट अलाउज पीपल टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली थ्रू ईमेल्स, मैसेजिंग apps and social media platforms. For example, video conferencing tools like Zoom and Skype enable virtual meetings, connecting people worldwide for both people, personal and professional purposes. तो इसमें कम्युनिकेशन आसान हो गया. आप घर बैठे किसी दूर अपने रिश्तेदार से, फ्रेंड से या अपने ऑफिस फ्रेंड से आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात कर सकते हैं. Education. The internet serves as a valuable resource for students and educators, offering access to online courses, research materials and interactive learning platforms like Khan Academy and Coursera. Schools and universities use it for remote learning and virtual classrooms, making education more accessible. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं. तो ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं. इसी तरीके से बाकी बच्चे जो हैं, जो दूसरे स्टेट नहीं जा सकते या दूसरी कंट्री नहीं जा सकते, वो ऑनलाइन क्या कर लेते हैं, अपने आप को उस प्रोग्राम में एनरोल कर लेते हैं ताकि वो क्या कर सकें, स्टडी वगैरह घर बैठे ही कर सकें. Healthcare. The internet supports telemedicine, allowing doctors to consult with patients remotely through platforms like Teladoc and Doxy.me. It also provides access to health information, patient records, and online health communities where people can share experience and seek advice. पहले क्या होता था, आपको सर दर्द होता था या कुछ भी बीमारी होती थी या आपको कंसल्ट भी करना होता था तो आपको क्या करना होता था, डॉक्टर के पास ही जाना होता था. लेकिन अब आप ऑनलाइन घर पे बैठे किसी डॉक्टर से अगर कंसल्ट करना चाहें, कुछ पूछना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं. E-shopping. The internet has revolutionized shopping by making it possible to buy goods and services online from anywhere in the world. Websites like Amazon, Alibaba and Etsy offers a wide range of products from clothing and electronic to handmade crafts. E-shopping provides convenience, better deals and access to global marketplace, all from the comfort of home. अब आप घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं. आपके पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, इट्सी है, अलीबाबा. इस पे आप इनकी साइट पे जा कर के आपको जो प्रोडक्ट पसंद है आप उसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं घर पे बैठे. आपको मार्केट जाने की या पैसा खर्च करने की, मतलब अपने ट्रैवलिंग वगैरह में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है. आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके घर पे आपको डिलीवर हो जाता है.
Entertainment. The internet offers a wide range of entertainment options such as streaming movie and TV shows on platforms like Netflix and Disney Plus, listening to music on Spotify, or playing online games with friends. It also provides access to social media where people can share content, follow trends and engage with other. एंटरटेनमेंट बहुत हो गया इसमें, आसान हो गया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप मूवी देख पाते हैं। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें आप घर पे बैठे मूवीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह भी देखते हैं और ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं। Banking and finance. Online banking services enable people to manage their finance, pay bills and transfer money without visiting a bank. Mobile payments apps like PayPal, Venmo and Google Pay make financial transaction fast and convenient, promoting a cashless economy. पहले आपको कैश विड्रॉ करने के लिए कहाँ जाना होता था? बैंक जाना होता था। बैंक की लंबी लाइन में आपको लगना होता था, फॉर्म फिल करना होता था, बहुत सारी आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वगैरह लगती थी। लेकिन अब ये सब जो है बहुत आसान हो गया। आप अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे घर बैठे ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, अपनी जो आपकी बैलेंस हिस्ट्री है वो चेक कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं और लोगों से पेमेंट्स वगैरह मंगवाना या उनको देना भी आप आसानी से कर सकते हैं। Travel and tourism. The internet has transformed travel planning by providing access to booking platforms like Expedia and Airbnb, where users can book flights, accommodations and tours. Travel blogs and review sites such as TripAdvisor help travelers make informed decisions and discover new destinations. अब ट्रैवल एंड टूरिज़्म भी आसान हो गया है। पहले तो आपको किसी जगह के बारे में पता नहीं होता था, आपको वहीं जाके पता लगता था। अब क्या कर सकते हैं, आप इजीली उसके बारे में गूगल कर सकते हैं, उसके कहाँ कहाँ वहाँ पे घूम सकते हैं, पैकेजेस वगैरह ले सकते हैं। तो ट्रैवल टूरिज़्म भी आप कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। Internet, a communication tool. The internet is a powerful tool for communication, making it easier for people all around the world to connect with each other, whether it is talking to friends and family, sharing pictures and videos, or working together on a project. The internet allows us to communicate quickly and efficiently. It helps us to stay in touch with others no matter where they are and make sharing information easy and fun. इंटरनेट जो है ये आपके लिए कम्युनिकेशन टूल बन गया है। इसमें आप ना सिर्फ बातें करते हो बल्कि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हो, वीडियोस वगैरह शेयर करते हो, वीडियो चैटिंग वगैरह करते हो, वॉइस कॉल वगैरह करते हो। और जो ऑफिसेज वगैरह में आपने देखे होंगे लोग वगैरह जो दूसरे ऑफिसेज के होते हैं या अपने किसी इंटर्न से या किसी भी एम्प्लॉय से अगर बात करनी हो तो उसको ऑफिस ना बुलाकर उससे वीडियो कॉल पे या वॉइस चैट कर सकते हैं। Key ways to the internet work as a communication tool. Email is like sending a digital letter to someone. You can write messages, attach file like pictures and documents and send them instantly to anyone with an email address. Popular email services like Gmail and Yahoo Mail make it easy for people to communicate quickly and effectively. अब email जो है ये आपका digital letters के थ्रू, जिससे आप क्या करते हैं अपने लेटर्स वगैरह क्रिएट करते हैं और उनको आप भेजते हैं दूसरे लोगों को। इसमें आप लेटर के साथ साथ अपनी फाइल भी या डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं। Next is instant messaging. Instant messaging apps like WhatsApp, Telegram and Facebook Messenger allows people to send text messages in real time. You can chat with friends and family instantly, share pictures, videos or voice messages, or even create groups for multiple people to join the conversation. आजकल क्या है, हर किसी के मोबाइल में व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में आप अपने वीडियोस वगैरह, पिक्चर्स वगैरह शेयर कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, वीडियो कॉल्स वगैरह कर सकते हो और ना सिर्फ एक को बल्कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। मतलब एक साथ आप बहुत सारे लोगों को उस कन्वर्सेशन को ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो। Social media platforms like Instagram, Facebook and X are used to connect with others, share updates and post pictures and videos. People use social media to stay in touch with friends, follow their favorite celebrities or learn about news and events happening around the world. सोशल मीडिया पे आपने अपना एक आईडी ज़रूर बनाया होगा जिसमें आप लोगों के साथ कनेक्ट करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो आपके फ्रेंड नहीं हैं उनके साथ आप बातें करते हो, अपनी पिक्चर्स वगैरह शेयर करते हो।
Video calls, video calling apps like Zoom, Skype, and Google Meet lets you see and talk to people face to face even if they are far away. This is great for virtual meetings, chatting with family, or helping students and teachers connect in online classes. वीडियो कॉल पे जैसे कि स्काइप पे है, जूम है, गूगल मीट है, इसमें आप लोगों से फेस टू फेस क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपसे दूर रहते हैं। इसमें आपने देखा होगा फैमिली मीटिंग्स वगैरह होती है, ऑफिस की मीटिंग्स होती हैं और स्कूल की क्लासेस वगैरह, ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट से कनेक्ट करते हैं। Email, understanding the basics. Email or electronic mail is a way of sending digital message over the internet. Think of it like sending a letter, but instead of using a postman, it gets delivered instantly through your computer, smartphone, or tablet. Email allows you to communicate with friends, family, teachers, and even people from other countries quickly and easily. तो ईमेल जो होता है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है जिसके थ्रू आप डिजिटली अपने मैसेजेस को या अपने लेटर्स को क्या करते हो, सेंड करते हो। इसमें आपके पोस्टमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको पोस्ट ऑफिस नहीं जाना होता, आप अपने स्मार्टफोन से ही या अपने लैपटॉप या टैबलेट से ही घर बैठे जिसको भी आपको मेल भेजना हो उसको भेज सकते हैं। Tips and notes, email etiquette. When sending emails, keep your messages clear and concise. Use a proper subject line and be mindful of your tone. This ensures effective and respectful communication. तो email etiquette के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जब भी आप किसी को मेल भेजते हो तो आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए जिसमें आप प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। Learning Gmail. Gmail is one of the most popular Gmail services provided by Google. It is simple to use and packed with useful features that make it perfect for both beginners and advanced users. It is widely used for both personal and professional email communication. तो Gmail जो है ये आपका मोस्ट पॉपुलर ईमेल सर्विस है जो कि गूगल के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसमें आपके यूज़फुल फीचर्स होते हैं जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी आसान होते हैं सीखने और वो बहुत जल्दी से सीख भी जाते हैं। हाउ टू क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपको जीमेल यूज़ करना है तो उसके लिए हमें पहले अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट हम कैसे बनाते हैं जीमेल पे। टू स्टार्ट यूजिंग जीमेल यू फर्स्ट नीड टू सेट अप एन अकाउंट ऑन जीमेल। टू मेक एन अकाउंट ऑन जीमेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। Open your browser, go to www.gmail.com, sign up, click on the create account button and select for my personal use. Fill in your details, enter your first name, last name and create a unique username. This will be your email address. Create password, make sure it is strong by including numbers, symbols and both upper and lowercase letters. Complete the form, follow the instructions to fill out your name, phone number, recovery email optional and date of birth. Agree to the terms, read through Google terms of service and policy, then click on I agree. तो इसके लिए आपको पहले तो जो ब्राउज़र उसको ओपन करना होगा जैसे कि www.gmail.com। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे इस पेज को साइड में आपको क्रिएट अकाउंट बटन दिख जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको सेलेक्ट करना है फॉर माय पर्सनल यूज़ क्योंकि आप इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फिर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फिर अपना एक यूज़र नेम आपको देना होगा। इसके बाद अपना पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे। पासवर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसमें आप सिर्फ नंबर्स ही नहीं डालेंगे, सिर्फ लेटर्स ही नहीं डालेंगे, इसमें आप सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं, नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं और लेटर्स को आप अपर एंड लोअर केस में दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपसे फ़ोन नंबर पूछा जा सकता है और रिकवरी मेल पूछा जा सकता है और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है। देन आपको जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको अग्री करना है आई अग्री पे क्लिक करके। अंडरस्टैंडिंग द जीमेल इंटरफेस, ठीक है। अब आप जीमेल पे एंटर हो चुके हो तो उसका इंटरफेस आपके सामने ओपन हो गया है। उसमें आपको क्या क्या इंटरफेस है, क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है इनबॉक्स। दिस इज़ वेयर यू विल सी ऑल द ईमेल्स यू रिसीव। जितने भी ईमेल्स आपको आए होते हैं वो इनबॉक्स में सेव्ड होते हैं। कंपोज बटन, क्लिक दिस बटन टू राइट अ न्यू ईमेल। ये आपका न्यू ईमेल कंपोज करने के लिए होता है। सेंड मेल, आप समझ ही गए होंगे, दिस फोल्डर कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ईमेल्स यू हैव सेंट। ड्राफ्ट मीन्स ईमेल्स यू स्टार्टेड बट डिडंट फिनिश विल बी सेव्ड हेयर। सपोज आप कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरे काम में बिजी हो गए तो आपका जो ईमेल है या जो लेटर है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा।
Trash deleted emails go to trash folder where they will stay for 30 days before being permanently deleted. तो स्ट्रेस आपका डस्टबिन की तरह होता है, जो ईमेल आपको नहीं चाहिए होती वो आप ट्रैश में भेज देते हो, ये वहाँ पे 30 डेज तक रहती है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली परमानेंटली डिलीट हो जाती है. हाउ टू सेंड एन ईमेल इन जीमेल. अब हम जानते हैं कि जीमेल में ईमेल आप कैसे भेजेंगे. क्लिक ऑन द कंपोज बटन इन द टू फील्ड, टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू वांट टू सेंड द ईमेल टू. जिसको आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसका आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए. Add a subject to let the recipient know what the email is about. सब्जेक्ट जो होता है, जैसे आप एप्लीकेशन में लिखते हो कि लीव फॉर एप्लीकेशन फॉर लीव या इस तरीके से, तो सब्जेक्ट जो होता है ये आपके मेल के बारे में बताता है जिसको आप भेजते हैं. राइट योर मैसेज इन द बॉडी सेक्शन एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन. तो एक बार आप अपना मैसेज टाइप कर लेंगे, उसके बाद आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे. Tech nuggets, spam emails, junk emails usually send in bulk to a large number of recipients. They often contain unwanted advertisement, promotion or phishing attempts and can sometimes be harmful or deceptive. Spam folder, a Gmail folder where suspected spam emails are automatically stored and deleted after 30 days. Attachments, to attach a file like a picture or document, click on the paperclip icon and select the फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर. स्पैम ईमेल जो होती हैं ये आपकी जंक ईमेल्स होती हैं, ठीक है, जो आप के ऐसे रिसिपिएंट के द्वारा भेजी जाती है जिसको आप नहीं जानते. इसमें आपकी अनवांटेड एडवर्टीजमेंट होती है, प्रमोशंस होती हैं और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, लिंक्स होते हैं जिन पे आप क्लिक करोगे तो हो सकता है आपके कंप्यूटर पे वायरस आ जाए. इसलिए ऐसे ईमेल्स को हमें ओपन नहीं करना चाहिए, उन्हें हमें स्पैम फोल्डर में डाल देना चाहिए. अटैचमेंट जो होती हैं इसमें आप अपनी फ़ाइल को अटैच कर सकते हो. फाइल किसी भी तरह की हो सकती है, आपकी पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट हो सकता है. टिप्स एंड नोट्स, सम ईमेल रिलेटेड टर्म्स. CC यानी कि कार्बन कॉपी. दिस फीचर अलाउज यू टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू एडिशनल रिसिपिएंट बिसाइड्स द मेन रिसिपिएंट. ऑल रिसिपिएंट कैन सी हु एल्स रिसीव द ईमेल. अब टू मतलब जिसको आपको मेल भेजना होता है उसको तो आप भेजते हो. CC में आप उस पर्सन का ईमेल आईडी डालते हो जिसको आप उसकी कार्बन कॉपी भेजना चाहते हैं. BCC यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी. दिस फीचर ऑल्सो लेट्स यू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल टू एडिशनल रिसिपिएंट्स बट द डिफरेंस इज द रिसिपिएंट लिस्टेड इन BCC फील्ड आर हिडन फ्रॉम अदर रिसिपिएंट्स कीपिंग देयर आइडेंटिटीज कॉन्फिडेंशियल. BCC भी जो होता है ये आपका CC की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें आपको जो रिसिपिएंट्स होते हैं उनको दूसरे रिसिपिएंट्स के बारे में नहीं पता होता कि आपने वो जो मेल है वो किस किस को भेजी है. Let's sum up the internet, known as the network of networks, connects millions of devices worldwide, enabling instant communication, access to vast information and making daily tasks easier. Internet is used for various purposes like communication, email, social media, education, online courses, research, healthcare, telemedicine, shopping, online stores, entertainment, streaming, gaming and financial transaction, online banking. Email is a method of sending digital messages quickly. Gmail is a popular email service by Google known for its user-friendly interface and various features like composing emails, organizing messages and managing attachments. तो इसमें हमने इंटरनेट के बारे में जाना, उसके एडवांटेजेस के बारे में जाना कि क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलते हैं. घर बैठे ही आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हो आप, ठीक है, बैंकिंग वगैरह आपका ईजी हो जाता है, ट्रैवलिंग वगैरह आपको टिकट्स वगैरह बुक करनी होती है तो आप घर बैठे ही कर सकते हो. साथ ही साथ हमने जीमेल के बारे में जाना जिसके थ्रू आप ईमेल जो अपने इलेक्ट्रॉनिक मेल है, डिजिटल मेल है, वो अपने फ्रेंड्स को या अपने कलीग्स को या दूसरे लोगों को भेज सकते हैं. Explore yourself, tick the correct option. What is the internet commonly referred to as? तो इंटरनेट का मतलब क्या है? It is a network of networks. Now fill in the blanks. The internet allows people to dash instantly through emails, messaging apps and social media platforms. So you will write here communicate. Write T true or F false. The internet can only be used for communication purposes. No, it is false. You can use internet for many purposes. Match the following. अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी गए, कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको उनके नाम से आपको क्या करना है, मैच करना है. जैसे कि जूम किस लिए काम आता है? ये कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जिसमें आप कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं.
Answer the following questions. What is the internet and why is it referred to as the network of networks? So you will define what is internet. The internet, known as the network of network, connects millions of devices worldwide, enabling instant communication, access to vast information, and making daily tasks easier. Now let's move forward to Tech Fun. Retrieving a deleted email. Your classmate has sent you an email with an attachment for a group project, but you accidentally deleted it. You need to retrieve the email and save the attachment to your computer. How can you find the deleted email in Gmail? तो आप कहाँ जाएंगे? Trash में जाएंगे. Let's talk tech. Discuss the advantages and challenges of using video calls for online classes. तो आपको online classes के advantages and challenges के बारे में discuss करना है. Talk about the role of subject line in email and how it helps in organizing and privatizing messages. आपको subject line के जो role है emails में, उनके बारे में आपको discuss करना है अपने classmates से. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.